Hello students, in previous classes we have completed trigonometric functions. Today I will be explaining calculus. What is the calculus? What is the calculus? It is a mathematical tool. But you are studying the physics, but why I am explaining the mathematical tool means in some of the cases, otherwise some of the derivations, without using mathematics we can't find out the answers in physics. Because of that reason we have to use the mathematical tool. Okay? This calculus is called as a mathematical tool. Again, this calculus is classified into two types. So there are two types. Calculus is classified into two types. Before that, what is the calculus? What is the calculus means? The mathematical study of continuous change. The mathematical study of the continuous change. Continuous change means might be I have studied in the class 9th and 10th. Suppose velocity is there. Okay, so velocity, you can see suppose I am showing here one graph of the velocity. Now you can see from this graph we can say that from this graph, now suppose I am saying a velocity time graph, velocity time graph I am looking at, and you can see that so continuously change हो रहा है. अब ध्यान से देखेंगे तो C ग्राफ में देख सकते हैं ये continuously change हो रहा है. ठीक है, continuously change हो रहा है. उसी के लिए हम ये क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल टूल यूज करके, मैथमेटिकल टूल यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द कंटीन्यूअस चेंज इन फिजिक्स. इफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज कंटीन्यूअसली चेंज हो रहा है, उसके लिए उसी के बारे में पढ़ाई करने के लिए, ओके, उसी के बारे में पढ़ाई करने के लिए हम यूज करेंगे मैथमेटिकल टूल. दैट इज द कैलकुलस. ओके, मैथमेटिकल टूल. Again, you see mathematical tool में there are two types. So there are two types of the mathematical tools. So one is the differentiation. What is the differentiation? And the second one is the integration. One is the differentiation. So what is the differentiation? You can see. And the second one is the integration. Clear? What is the calculus? Calculus is a mathematical tool. Take in our day-to-day life also. So as in the many tools. What is the use of the tools? Okay, by using the tool you can complete the any work easily. Okay, you don't need to put the more efforts. So in this case also same thing. By using the mathematical tool, we can easily solve the sum of the problems. To solve the sum of the problems, we use the mathematical tool. So what is the calculus? Definition of the calculus is the mathematical study of the continuous change. Okay, the mathematical study of the continuous change. In physics, if any physical quantity is continuously change हो रही है, suppose you take the velocity. Suppose I have taken the velocity. Normally we say that general case. Suppose I am saying so the speed of the bike I told the 30 kilometers per hour. 30 kilometers per hour means ये तो impossible है. ये तो थोड़ा बढ़ सकते, थोड़ा कम भी हो सकते हैं ना. Suppose हम नॉर्मल बोल रहे 30 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं तो 40 किलोमीटर like the time telling. Otherwise, I am telling the 40 kilometers per hour. Okay, 40 kilometers per hour I am saying. So in this case, you can see 40 kilometers per hour. 40 kilometers per hour means and in between कभी-कभी तो 40 से भी थोड़ा कम भी होते हैं, 40 से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, got my point? Continuously 40 kilometers per hour नहीं होगा, थोड़ा सा वेरिएशन भी होगा. ठीक, अब देखना व्हाट इज द कंटिन्यूअस चेंज. कंटिन्यूअस चेंज में सर कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी मान लेना, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी में सपोज आप वेलोसिटी मान लेना, तो नहीं तो वेलोसिटी अब मानेगा तो ये वेलोसिटी कभी-कभी तो क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, नहीं तो डिक्रीज भी हो सकता है. कंटिन्यूअस चेंज में इससे देखिए ऐसा देखिए तो अब देखिए मैं कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है वेलोसिटी. ठीक है, अब देखिए तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाई करना चाहे तो we should know the calculus. ठीक है, calculus में there are two tools. One is for integration, one for the differentiation. Okay, first we will be studying about the differentiation. What is the differentiation? So differentiation में आप देख सकते हैं पहले point calculate the gradient of curve. Gradient of curve में सर so हम ये दोनों केस में पढ़ाई करेंगे कर्व्स के बारे में. ठीक है, इसमें भी इंटीग्रेशन अदरवाइज डिफरेंशिएशन, और दोनों केसेस में हम पढ़ाई करेंगे कर्व्स के बारे में. ठीक है, कर्व के बारे में पढ़ाई करेंगे. अब देखिए कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ कर्व. ग्रेडियंट मतलब कि आपने 9th मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया होगा. ग्रेडियंट मींस स्लोप ऑफ दैट कर्व. ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व.
Now see, suppose here this is two curves like this. Okay, this is one curve and this second curve. Suppose to get the slope of straight line across curve, we have to take the need 2 points. Suppose we have selected a point A. This is x1 y1, and the second coordinate you are taking B, x2 y2. Take it. This is B. Now we used to make one triangle. Take it. Now this is suppose मान लें theta. क्या होगा theta? एंगल theta. Suppose A एंगल theta हो तो एंगल B कितना होगा theta होगा. ठीक है. अब ये theta फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है. अब theta is इंक्लिनेशन ना. कैसे ग्रेडियंट मींस tan theta फाइंड आउट करना पड़ेगा. tan theta मींस अब देखना tan theta हो तो tan theta इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस हमको A चाहिए y के रेस्पेक्ट में मतलब यार दिस इज व्हाट y1 and this is what y2. Okay, tan theta is equal to y2 minus y1 perpendicular. ये क्या है perpendicular अपॉन बेस मींस ये क्या होगा यहाँ से आता है ये तो x1 होगा ये तो x2 होगा, so that means that x2 minus x1. Got my point? डिफरेंशिएशन मतलब है हम पढ़ाई करेंगे ग्रेडियंट के बारे में, ग्रेडियंट ऑफ एनी कर्व, कोई स्ट्राइट लाइन कोई सा भी कर्व के बारे में. ठीक. अब इसमें देखना दिस फॉर्मूला ऑलरेडी यू नो दैट यू आल्सो इन द 10th क्लास स्ट्राइट लाइंस, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्राइट लाइन. tan theta is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक. Now it is a straight line. It's a straight line. So wherever you want we can take means we can take any 2 points and find out slope हमेशा क्या रहे कांस्टेंट आ रहे हैं. इसी केस में आप लोग इट इज स्ट्राइट लाइन. दिस स्ट्राइट लाइन में सिर्फ आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन टेक द एनी 2 डिफरेंट पॉइंट. सो एवरी टाइम वी गेट द इक्वल स्लोप मींस इन दिस केस आप बता सकते हैं ये कांस्टेंट है. ठीक है. ग्रेडियंट क्या होगा कांस्टेंट. ग्रेडियंट मींस डोंट थिंक समथिंग एल्स. ग्रेडियंट मींस स्लोप होगा. क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करें सपोज ये देखिए से हम एक्सप्लेन होता है. So I'm getting 2 types of curves. This is the first curve. Okay, I'm getting that. This is on straight line now. One is x-axis, y-axis. Positive axis is the south. It is making some angle. There is a theta. Take. इसमें हमें क्या कहते हैं 2 points select करते हैं. एक point A that is x1 y1 and second coordinate हमने लिया था B that is x2 y2. ठीक है. 2 coordinates now taken. अब इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट. ग्रेडियंट मींस द स्लोप है. सो अब क्या करेंगे ये दोनों को ऐसे ज्वाइन करेंगे. अब देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना. देखो डांस करके राइट एंगल ट्रायंगल तो 90 डिग्री से राइट एंगल ट्रायंगल. अब ये थीटा हो तो ये भी क्या होगा थीटा हो. ये मींस दीस बोथ लाइंस आर पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइंस. ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है अब ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन. दिस बोथ हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे होगा बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर मींस एंगल थीटा हो तो एंगल भी कितना होगा थीटा होगा. लेकिन हमको क्या चाहिए ग्रेडियंट मींस स्लोप मींस tan थीटा. हमको क्या चाहिए tan थीटा. ठीक है. अब tan थीटा अब होता है तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल बता सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर मींस ये है. ठीक है. ये लाइन हमको चाहिए. ये लाइन किस पे आएगा y एक्सिस पे आएगा. ऐसे एक्सटेंड करें तो ये लाइन आपको किस पे आएगा y एक्सिस पे. दैट मींस इसी पे y वैल्यू का तो y1 और यहां पर y वैल्यू का तो y2. ठीक है. y2 लेकिन y2 कहां से ऑरिजिन से यहां से आता है y2 और यहां से आता है y1. लेकिन हमको क्या चाहिए इतना चाहिए मतलब लिख सकते हैं y2 minus y1. You can write y2 minus y1. Next and base means this is x1 and this is x2. ठीक है. ये x2 कहां से ऑरिजिन से यहां से आता है x2 और यहां से आता है x1. लेकिन हमको कितना चाहिए मतलब x2 minus x1. दैट वन इसको हम क्या बोलेंगे ग्रेडियंट. क्या बोलेंगे ग्रेडियंट. जैसे y2 minus y1 upon x2 minus x1. ठीक. नाउ इसी केस में देखें ये तो कांस्टेंट है. वही इस कांस्टेंट में सर ऑलरेडी आप लोगों को पता है स्ट्राइट लाइन का स्लोप निकालेगा तो एक स्ट्राइट लाइन दिया था. उस स्ट्राइट लाइन में यू कैन टेक एनी 2 डिफरेंट
दो तीन बार अलग अलग पॉइंट्स लेके आप फाइंड आउट कर लेना। स्लोप हमेशा क्या है, इक्वल आएगा, स्लोप विल नॉट चेंज, ठीक है, ग्रेडियंट विद द कांस्टेंट, ठीक। अब इसमें देखिए होता है ना, लगातार चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होगा तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंटिन्यूसली चेंज होगा तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट। सपोज आपने हाँ एक पॉइंट है तो पॉइंट ए या पॉइंट बी लिया था, okay, point A is x1 y1, point B is x2 y2, ठीक है। अब ये भी होगा 9th क्लास में, might be also in 9th class this type of straight line and this type of curve also, ठीक है। वेलोसिटी बारे में, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा चुका होगा, ठीक है। अब देखिए इसी केस में हमने फाइंड आउट किया था तो स्ट्राइट लाइन हो तो स्लोप तो कांस्टेंट है, हमें ऐसा ग्रेडियंट क्या आएगा, कांस्टेंट। लेकिन इसी केस में ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखिए ना, हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए दो पॉइंट्स सेलेक्ट किए थे, दोनों पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद हमको क्या मिला, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या फॉर्म हुआ, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, ठीक। अब इसमें आपने दो पॉइंट्स ऐसे थे, देख लेना, ठीक, ऐसे दोनों तक ऐसे जोड़ा था, ठीक। लेकिन अब यहाँ से देखिए होगा सर, हमें क्या किस नंबर टेंजेंट, टेंजेंट ऐसे किया जाता कि टेंजेंट मींस विच टच द एट वन पॉइंट, एट सिंगल पॉइंट टेंजेंट, तो टेंजेंट एप्लीकेशन जैसे टेंजेंट नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे टच करें टेंजेंट, इसी कर्व को इसी पॉइंट पे टच करके दे टेंजेंट। लेकिन एक टेंजेंट नॉट पासिंग टू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसमें देख लो स्ट्राइट लाइन इज पासिंग टू द ए एंड बी, सो द ट्रायंगल फॉर्मर है, लेकिन इट इज नॉट पासिंग टू द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसको दोनों को कट कर कैसे, ठीक है, कट कर कैसे, इसमें इसका मतलब है हमको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, लेकिन शुड बी पासिंग टू द पॉइंट ए एंड बी, इट शुड बी पासिंग टू द पॉइंट ए, इसमें देख लेना इट इज पासिंग टू द ए एंड बी, ठीक। उन्हें क्या कहता है, उसके बाद में क्या कहता है, ऐसा होगा तो यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द स्लोप, उन्हें क्या कहता है, ऐसा कहता है, उन्हें क्या कहता, उसके बाद मैथमेटिशियन लोग में क्या कहता है, ये पॉइंट्स में क्या कहता है, वेरी पास में लेता, अब देखिए कितना पॉइंट्स ना वेरी पास में लेता, वेरी पास में, अब वेरी पास होगा तो आप देख सकते हैं, अब टेंजेंट किससे का तो ऐसे जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिएगा, उन्हें क्या किया, मैथमेटिशियन ने क्या किया था, वो पहले थोड़ा दूर वाला पॉइंट्स लिया था, दूर वाला पॉइंट्स लेके कोशिश किया था टेंजेंट की इसके, लेकिन दैट टेंजेंट वाज नॉट पासिंग थ्रू द दिस बोथ पॉइंट्स which points you are selected. Now have selected these 2 points, one is A, one is B, but these both are very closer, ठीक है, very closer, ठीक, and very closer, and अब बनेगा रेक्टेंगल ट्रायंगल बनेगा, इसका फाइंड आउट करेंगे तो नहीं थीटा फाइंड आउट करेंगे, tan theta is equal to formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट है तो इसको हम बोलेंगे ग्रेडियंट, ठीक। अब देख लेना ये वैल्यू बहुत पास में y2 minus y1 वैल्यू भी क्या होगा, बहुत छोटा मींस सर आप इसका dy, उसको क्या लिखा है dy, और x2 minus x1 वैल्यू क्या होगा, ए भी बहुत छोटा होगा, दस सब कहते हैं dx, dy upon dx। अब ये dy upon dx को बोलेंगे डिफरेंशिएशन, got my point? So we are studying about the differentiation. So what I told here, calculus means it is a one mathematical tool. Calculus is a mathematical tool, and calculus is the study of mathematics, study of the mathematics, which is continuously changing. मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, उसी के बारे में पढ़ाई करनी है, दैट इज द calculus. Again, in this calculus there are 2 types of the tools. One is the differentiation, one is the integration. ठीक है, फर्स्ट calculus
कैलकुलस मींस व्हाट इट टूल, मैथमेटिकल टूल। अब मैथमेटिकल टूल अब क्या कौन सा पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं? मैथमेटिक्स में कौन से वैल्यू लगातार चेंज होगा तो उसी के बारे में पढ़ाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। अगेन हाउ मेनी टूल्स आर देयर? टू टाइप्स, वन द डिफरेंशिएशन, सेकंड वन द इंटीग्रेशन। नाउ पहले डिफरेंशिएशन देखिए ना, यूजेस डिवीजन मींस बहुत छोटा वैल्यू लेना है। देखिए इसमें देखा बहुत छोटा वैल्यू लेना है, इसको हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अब इसमें हम लिखा था यूजेस डिवीजन मींस है तो डिवाइड करेंगे मींस है तो बड़ा वैल्यू हम नहीं लेंगे, बहुत छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, बहुत छोटा वैल्यू लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें लगातार चेंज नहीं हो रहे, यू गॉट माय पॉइंट, इसमें लगातार चेंज नहीं हो रहे, लेकिन हम पढ़ाई करना पड़ेगा। हाँ फिजिकल क्वांटिटी लगातार चेंज हो रहा है, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, कहाँ चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। अब इसमें आप देखिए तो हर पॉइंट में चेंज हो रहे हैं लगातार, हर पोजीशन में ईच एंड एवरी पॉइंट पे तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। उसके बारे में पढ़ाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन मतलब हमने क्या बोला था? ग्रेडियंट टूल। कभी तो ग्रेडियंट में स्लोप फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमने मैथमेटिक्स ने क्या किया था? पहले दो पॉइंट्स उसी कर्व में से दूर पे लिया था, ठीक है। उसी समय टेंजेंट, कौन सा टेंजेंट हमने लिया था? दैट टेंजेंट वाज नॉट पासिंग थ्रू द बोथ पॉइंट्स। हम इससे दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे करेंगे? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो टेंजेंट ए, टेंजेंट ऐसे देगा, एक पॉइंट ए लिया था, एक पॉइंट बी लिया था, ठीक है। तो कर्व हो तो हम क्या करना पड़ेगा? इसको टेंजेंट कैसे मतलब ऐसे टेंजेंट कैसे करते हो? अब देखिएगा तो टेंजेंट, अब टेंजेंट कैसे करते हो? इट इज नॉट पासिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। अब उससे अच्छे से रेक्टेंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म हो रहा है। उसके बाद ये मैथमेटिक्स ने क्या किया था? ये दोनों पॉइंट्स को वेरी क्लोज में, बहुत क्लोज में लिया था, ए और बी, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स लिया था, अब टेंजेंट कैसे करते हो? द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ए एंड बी, द टेंजेंट इज पासिंग थ्रू द ए एंड बी, ठीक। देन टेंजेंट इज इक्वल टू y2 minus y1 upon x2 minus x1, एंड here a and b are very पास में होगा तो y2 minus y1 वैल्यू कितना होगा? बहुत कम होगा, ओके, वेरी स्मॉलर वैल्यू होगा। आप लिखते हैं dy, y2 minus y1 क्या लिख सकते हैं? dy, एंड x2 minus x1 क्या लिख सकते हैं? dx आप लिख सकते हैं। अब dy upon dx को हम क्या करेंगे? So we can say that dy upon dx is a differentiation with respect to x. We are taking the differentiation to y with respect to x. got my point? हम किसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? y को कर रहे हैं, फंक्शन y को हम कर रहे हैं, कौन किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, सो हम क्या लिया था? बहुत छोटा वैल्यू लिया था, दैट्स व्हाई हमने इधर लिखा था डिफरेंशिएशन मींस यूजेस डिवीजन मींस बहुत छोटा वैल्यू को हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। ठीक, इतना बड़ा कर्व है, हम पूरा बड़ा कर्व नहीं लिया, हमने क्या किया था? अब देखना 2 पॉइंट्स सेलेक्ट किए तो दोनों पॉइंट्स बी वेरी क्लोजर टू ईच अदर। देन हमने क्या किया? स्लोप फाइंड आउट किया था, मींस ग्रेडियंट फाइंड आउट किया था। फाइंड आउट करने के बाद y2 minus y1 upon x2 minus x1, एंड दिस बोथ पॉइंट्स आर वेरी क्लोजर मींस y2 minus y1 वैल्यू बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा मींस dy आप लिख सकते हैं, एंड x2 minus x1 भी बहुत छोटा होगा, सो यू कैन राइट dx। नाउ dy upon dx को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, dy upon dx को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट मींस एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल। Second point, real time application in physics. So there is instantaneous velocity and then instantaneous acceleration. What is the instantaneous velocity? Okay, na? Second point I am explaining. So what is the instantaneous velocity? So बोल रहे हैं differentiation हम physics में use करेंगे, कहाँ use करेंगे? Differentiation हम कहाँ use करेंगे physics में? Instantaneous velocity. Instantaneous क्या होगा? Normally अब देखिए वेलोसिटी से इक्वल क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मींस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। मैं तो ऐसे वैल्यू से एक्सेलरेशन रिलेशन इक्वल टू एंगुलर इज इक्वल टू
v2 minus v1 upon t2 minus v1. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना. अब व्हाट इज एक्सेलरेशन फॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऑब्वियसली वेलोसिटी अपॉन टाइम एन फॉर्म नॉर्मल बताएंगे. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ द accelerations. One applies to the average and second one is instantaneous. Average मतलब particular time interval means of t2 is equal to 10 seconds and t1 is equal to 2 seconds. ठीक है. And velocity also v2 is equal to suppose 20 meter per second and v1 is equal to 5 meter per second. अब हम यूज करेंगे तो इसको करता है v2 minus v1 20 minus 5 upon 10 minus 2, that is 15 upon 8 है. ठीक. अब देखना अपने पर्टिकुलर इंटरवल टाइम इंटरवल हमने क्या कहते हैं इंटरवल लिया था. ओके, दैट टाइम इंटरवल लिया था. सो इन दैट टाइम इंटरवल ऑफ इंटरवल यूज करेगा तो उसको हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन. एवरेज एक्सेलरेशन इसको आप लिखेंगे ए एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन delta t, delta v upon delta t. इसको हम बोलेंगे average acceleration. Clear? This is called as average acceleration. But what is the instantaneous? Instantaneous acceleration is instantaneous acceleration पर time पे, एक time पे. Instantaneous means कोई particular time पे. Suppose acceleration is given a is equal to that is 3t square plus t is given. ठीक है, एक फंक्शन फॉर्म में देखो ना. सपोज एक्सेलरेशन is equal to 3t square plus t. And now they are asking to find out the acceleration t is equal to 1 second. 1 second. That means particular time पे that is called instant time पे. ठीक है, कोई अदर इंटरवल नहीं है. that particular time पे नहीं तो 1 second पर नहीं तो 2 सेकंड पर ऐसा होता है. instant से हो तो आप इसको ये instantaneous acceleration is equal to dv upon dt. That's why this instantaneous को हम बोलेंगे हमेशा differentiation. इसको नहीं. So ये differentiation है. ये तो differentiation है. Instantaneous velocity. So there the instantaneous velocity and instantaneous acceleration. ठीक. अब instantaneous velocity कैसे लिख सकते हो? तो suppose here average velocity आप लिखेगा तो velocity का average लिखेगा तो आप ऐसे लिखते हैं delta v upon delta t. That means कुछ टाइम इंटरवल. ठीक है, थोड़ा बड़ा वैल्यू. अब देख लेना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस आप देखते हैं dv upon dt मींस ये dv बहुत छोटा है. dv मतलब ये तो बहुत छोटा है, dt भी बहुत छोटा है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस. ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है, these are some real life applications. ओके, इसी के बारे में हम पढ़ाई करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो दैट वाज सेकंड पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज स्पीड फंक्शन. इट इज अ स्पीड फंक्शन. ठीक है, इट इज अ स्पीड फंक्शन. आप फंक्शन आप देखेगा तो ठीक है. सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग द डिफरेंशिएशन ओके किस में आएगा? स्पीड फंक्शन में आएगा. स्पीड फंक्शन में आएगा. ठीक. सो दिस इज अबाउट द what differentiation. This is about the differentiation. ठीक. And what is the integration? means differentiation हम क्या फाइंड आउट करें? differentiation हम कैलकुलेट करें gradient of curve कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है. and second point आप देख लेना रियल टाइम एग्जांपल क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए. लेकिन इधर हमेशा डिफरेंशिएशन किस में आएगा? स्पीड फंक्शन में आएगा. किसमें आएगा? स्पीड फंक्शन में. एंड इसमें इंटीग्रेशन आप नाम देकर बता सकते हैं. इंटीग्रेट मींस सबको जोड़ना ही है. दैट्स व्हाई यूजेस एडिशन. ठीक है, इसमें देख लेना डिफरेंशिएशन मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन मींस डिवीजन. बहुत छोटा वैल्यू को हम फाइंड आउट करें. ठीक है, बहुत छोटा वैल्यू को हम फाइंड आउट करना. ठीक.